ओके बघा प्रॉब्लेम रीड करतोय. स्टॉकवाला प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये. बघा ओपनिंग अँड क्लोजिंग स्टॉक आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके. सत्य Satyuk Times Limited submits the following information in respect of the product which passes through the three consecutive processes, namely injection process, digestion process, and assimilation process. Okay, for the month ended 31st January 1997. Okay. नेक्स्ट त्यांनी आपल्याला इन्फॉर्मेशन काय प्रोव्हाइड केलेलं आहे, क्वांटिटी. Okay, next they have provided us actually quantitative information in kgs, that is basic raw material. So basic raw material introduced in only one process, first process, that is ingestion process. Okay, 80,000 kg. Okay, this information is given in kg. Okay, next they have provided the uh, okay, actually this is the part actually first. Okay, at the rate of rupees 40 per kg. Yeah. Okay, this 80,000 kg is at the rate of rupees 40 per kg. Next they have provided normal yield. Okay, in the current problem they have provided normal yield, means normally output, normal output. Okay, we have solved so many problems actually, but every problem we have seen that actually they have provided the normal loss. Okay, so अभी इस प्रॉब्लम में आपने देखेंगे तो नॉर्मल इल्ड दिया हुआ है, मतलब प्रोडक्शन दिया हुआ है उन्होंने, तो यहाँ पर 20% नॉर्मल लॉस रहेगा. ओके, 80% नॉर्मल इल्ड है, नॉर्मल प्रोडक्शन कितना है 80% है, मतलब लॉस कितना रहेगा 20%. ओके, सेकंड प्रोसेस में नॉर्मल इल्ड है हमारा 60%, मतलब लॉस कितना रहेगा 40%. और लास्ट प्रोसेस में हमारा नॉर्मल इल्ड दिया हुआ है 50%, मतलब लॉस कितना रहेगा हमारा 50%. ओके, तो इस हिसाब से हमें ये प्रिपेयर करने का एक्चुअली. ओके, यहाँ पर नॉर्मल इल्ड प्रोवाइड किया हुआ है, मतलब नॉर्मल लॉस दिया नहीं है, नॉर्मल इल्ड दिया है, तो थोड़ा सा रिवर्स सिचुएशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो हमें एक्चुअली नॉर्मल लॉस ही मेंशन करने का है. ओके, नॉर्मल लॉस ही मेंशन करने का है. ओके, next they have given the output during the month. Okay, this output is also in actually units or kg. Okay, in kg 62,000, 36,000 and 21,000. Next they have given the this is actually opening stock. Okay, stock of the process output 31st December 1996. Okay, we have given all the information related to 31st January 1997. That means this is opening stock for the particular period. Okay, and this is the closing stock for the particular period. Okay, we have given the information related to 31st January 1997. Okay, so this is opening stock and this is closing stock. Okay, next additional information, process material. Actually this information is given in actually rupees. Okay, process material 3,45,000. Okay, next labor man days. Okay, so this information related to days. Okay, these are the days, 2,400 days, and they have also given the rate per day. Okay, 80 per man day. Okay, that means we can calculate the amount by multiplying 2,400 to 80. Okay, 80 into 2,400 will be the injection process direct material. Okay, labor. Next they have given the machine overhead 60% of wages. ओके, जो हम लेबर निकालेंगे उसके 60% हमारा मशीन ओवरहेड रहेगा. उसके बाद में उन्होंने हमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिया हुआ है, वो तो डायरेक्टली रुपीज़ में ही दिया हुआ है. ओके, और हर बार याद रखना कि हमें जब ऐसे स्टॉक वाले जो प्रॉब्लम आएगा, तो स्टॉक वाले प्रॉब्लम में ओपनिंग स्टॉक का हमें रेट दिया रहेगा प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक का रेट हमें कभी भी नहीं देंगे वो प्रॉब्लम में. तो क्लोजिंग स्टॉक का रेट कौन सा रहेगा, जो प्रोसेस कॉस्ट का जो रेट रहेगा वही हमें क्लोजिंग स्टॉक का अप्लाई करने का है. मतलब यहाँ पर हमें एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन एंड प्रोसेस स्टॉक, ये तीन जगह पर हम एक्चुअली ये प्रोसेस कॉस्ट जो निकालेंगे, प्रोसेस रेट जो निकालेंगे वो हम अप्लाई करेंगे. ओके, तो करंट प्रॉब्लम में हमें ओपनिंग स्टॉक का रेट दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का रेट हमें देंगे नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. जो हम प्रोसेस रेट निकालेंगे वो प्रोसेस रेट हम अप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को. ओके, और लास्ट में हमें स्क्रैप वैल्यू पर केजी दिया हुआ है. स्क्रैप वैल्यू पर केजी मतलब कौन सा, नॉर्मल लॉस का जो केजी यूनिट्स आएगा उसको हम स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, स्क्रैप वैल्यू रेट से मल्टीप्लाई करके हम स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे. ओके, तो इस प्रकार से हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है. ओके, तो अभी सॉल्व करते हैं एक्चुअली इन द बुक्स ऑफ. Okay, in the books of Satyayug Times Limited. Okay, Satyayug Time Limited. First process है ingestion process.
ओके, इंजेक्शन प्रोसेस अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, सेम ही एक्चुअली जैसे हम नॉर्मल प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं वैसे ही प्रिपेयर करने का है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक का एक और एक हमें अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अभी पहले इनपुट दिया हुआ है, ओके, बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डेबिट साइड को ट्रांसफर कर देंगे टू बेसिक रॉ मटेरियल। ओके, टू बेसिक रॉ मटेरियल यूनिट्स, यूनिट्स कितना दिया हुआ है 80,000 यूनिट्स है, यूनिट्स कॉलम में 80,000। ओके, रेट दिया हुआ है 40 पर केजी। ओके, तो यहाँ पर रेट मेंशन होगा 40 पर केजी, अमाउंट निकलेगी 80,000 इंटू 40। ये तो नॉर्मल है एक्चुअली। यहाँ पर आ गए 32 लाख रुपीज़। ओके, 32 लाख रुपीज़। नेक्स्ट ये नॉर्मल इल्ड दिया हुआ है, मतलब 20% हमारा नॉर्मल लॉस है, तो ये क्रेडिट साइड को बाय नॉर्मल लॉस। ओके, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना परसेंट दिया हुआ है, एक्चुअली प्रॉब्लम में वैसे परसेंट नहीं दिया है, लेकिन इल्ड दिया हुआ है हमें, नॉर्मल इल्ड दिया हुआ है, मतलब रिमेनिंग हमारा नॉर्मल लॉस रहेगा। तो जो इनपुट है उस पर हमें कितना निकालने का है 20 डिवाइड बाई 100, 20% है 16,000 है। ओके, और इसका रेट यहाँ पर नीचे दिया हुआ है 100 रुपीज़, रेट एकदम एंडिंग में दिया हुआ है 100 रुपीज़, तो ये मल्टीप्लाई करके हम अमाउंट निकाल देंगे। ओके, 16 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट आउटपुट ड्यूरिंग द मंथ दिया हुआ है 62,000। ओके, तो आउटपुट हमें क्रेडिट साइड को मेंशन करने का है बाय आउटपुट। अभी ये आउटपुट है ना, ओके, आउटपुट मेंशन करने का, आउटपुट कितना परसेंट दिया हुआ है, एक्चुअली यूनिट्स में दिया हुआ है आउटपुट, आउटपुट है 62,000। ओके, आउटपुट है 62,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ प्रोसेस स्टॉक दिया हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इसके लिए हमें सेकंड एक सेपरेट अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है, इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ओके, हमें अलग से स्टॉक अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है, इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ओके, इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट, उसका ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो यहाँ पर बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, और यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, सॉरी यहाँ पर क्रेडिट डाउन आएगा और यहाँ पर ब्रॉड डाउन आएगा। ओके, ओके, तो देखो ओपनिंग कितना है 8,000 यूनिट्स है, ओपनिंग 8,000 यूनिट्स है, तो यूनिट में हम लिख देंगे ओपनिंग 8,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग में कितना यूनिट्स है, क्लोजिंग में 10,000 यूनिट्स है, तो क्लोजिंग में 10,000 लिख देंगे। ओके, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड को आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड को आएगा। ओके, और ओपनिंग का हमें रेट भी दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पर है वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक पर केजी 60 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 60 रुपीज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके हमें अमाउंट निकल आएगा, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया 4,80,000। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लोजिंग स्टॉक का रेट हमें जो प्रोसेस कॉस्ट का जो रेट आएगा वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो अभी क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं लिखलेगा, लेकिन ओपनिंग स्टॉक का हमने अमाउंट निकाल दिया। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पर प्रोसेस मटेरियल है, तो वो डेबिट साइड को आएगा, वो सभी एक्सपेंसेस है वो सभी डेबिट साइड को आ जाएंगे। ओके, प्रोसेस मटेरियल उसका सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफर होगा 3,45,000। ओके, नेक्स्ट है लेबर। ओके, लेबर हम लिख देंगे डेबिट साइड को ही लेबर। ओके, अभी लेबर यहाँ पर ही हम इनर कॉलम को हम इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं, 2,400 डेज है। ओके, तो 2,400 इंटू कितना पर डे, पर मैन डे कितना 80 रुपीज़ है, तो इंटू 80, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्चुअली 2,400 इंटू 80। अभी ये यूनिट्स नहीं है, ये यूनिट्स यहाँ पर लिखने के नहीं है। ओके, क्योंकि ये मैन डे बताया हुआ है, ये कि एक्चुअल यूनिट्स नहीं है, तो यूनिट में आप लिख देंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो 2,000 हमें पर्टिकुलर कॉलम में ही लिखने का, एक्चुअली यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 2,400 मैन डे इंटू ₹80। ओके, इस प्रकार से हमने वो अमाउंट निकाल दिया है यहाँ पर 1,92,000। ओके, okay, next they have provided machine overhead, all the expenses we will mention at the debit side of process account to machine overhead amount ₹60% of wages। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ब्रैकेट में मेंशन कर दो एक्चुअली वो
जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया 60% ऑफ वेजेस, वेजेस मतलब लेबर, तो इसके 60% हमें निकालने का, ये इसके 60%। ओके, 1,15,200। ओके, नेक्स्ट अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टू अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अमाउंट 2,75,800, 2,75,800। ओके, नेक्स्ट वे हैव ऑलरेडी यूटिलाइज दिस इंफॉर्मेशन। ओके, तो अभी देखिए एक्चुअली यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया एक्चुअली। अभी हमें प्रोसेस का रेट निकालना पड़ेगा। ओके, प्रोसेस का रेट निकाल देंगे। ओके, और ये जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट भी हमें ना प्रोसेस स्टॉक को ही ट्रांसफर करने का, अभी पहले हम सॉल्व करके लेते हैं एक्चुअली। बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे 80,000, ये भी कितना टोटल है एक्चुअली 78,000, तो क्रेडिट को ही टोटल आएगा 80,000। यहाँ पर हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, तो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 2,000, बैलेंसिंग यूनिट्स आ रहा है 2,000, मतलब जो 2,000 आया हुआ है वो है क्या एक्चुअली एबनॉर्मल लॉस है, तो 2 एबनॉर्मल लॉस। ओके, एबनॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट्स। ओके, देखो अभी क्रेडिट हो गया 80,000 यूनिट्स और डेबिट हो गया 80,000 यूनिट्स। ओके, मतलब हमारा 80,000 हमने यूनिट इनपुट दिया था, 16,000 नॉर्मल लॉस हो रहा है, तो हमें आउटपुट कितना मिलना चाहिए था, इतना आउटपुट मिलना चाहिए था 80,000 माइनस 16,000, तो आउटपुट मिलना चाहिए था एक्चुअली 64,000 आउटपुट मिलना चाहिए था, लेकिन आउटपुट कितना मिला 64 मिलना चाहिए था, 62 मिला, तो माइनस 2,000 ये जो है एबनॉर्मल लॉस हमारा आ गया। ओके, हमारा आउटपुट कम मिल गया, इसकी वजह से एबनॉर्मल लॉस आ गया। अभी ये दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों जो है उसको हमें प्रोसेस रेट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो प्रोसेस रेट यहाँ पर निकालते हैं पहले। ओके, प्रोसेस रेट, प्रोसेस रेट इज इक्वल टू, मैं अभी फॉर्मूला अभी डायरेक्ट एक्चुअली फॉर्मूला क्या है प्रोसेस रेट का, प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय इनपुट यूनिट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट। ओके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रोसेस रेट निकालता हूँ, डेबिट साइड की टोटल आएगी प्रोसेस कॉस्ट। ओके, ये पूरा टोटल कर दो, प्रोसेस कॉस्ट आ गया 41,28,000, 41,20,000 यहाँ पर निकालता हूँ 41,28,000। ओके, उसके बाद में माइनस हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 16 लाख है। ओके, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट 80,000 यूनिट से, इनपुट यूनिट 80,000 यूनिट से माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, नॉर्मल लॉस यूनिट 16,000 है, नॉर्मल लॉस यूनिट 16,000। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं आंसर निकाल देता हूँ एक्चुअली। ओके, यहाँ पर फाइनल रेट निकाल देता हूँ। ओके, 39.5। ओके, तो 39.5 अप्लाई होगा यहाँ पर दोनों जगह पर, 39.5 एबनॉर्मल लॉस को भी आ जाएगा 39.5 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगी आउटपुट की कितनी है, वो आउटपुट हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक अकाउंट को, हमें ट्रांसफ़र करने का वो आउटपुट। ओके,
ये जो आउटपुट है वो ट्रांसफर होगा स्टॉक अकाउंट के, स्टॉक अकाउंट के डेबिट साइड को आउटपुट ट्रांसफर होगा। यहाँ पर लिखने का आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट, आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट। ओके, तो ये जो आउटपुट है ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये आउटपुट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा ओके टू इंजेक्शन प्रोसेस अकाउंट। ओके, इंजेक्शन प्रोसेस अकाउंट। ओके, ये जो रेट हमने निकाला ना प्रोसेस कॉस्ट का, वो रेट यहाँ पर भी अप्लाई होगा 39.5। ओके, और क्लोजिंग स्टॉक भी उसी रेट से हम निकाल लेंगे। ओके, तो अब ये फाइनल हम जो बैलेंसिंग अमाउंट निकलेगा ना वो हम सेकंड प्रोसेस को हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, तो बैलेंसिंग अमाउंट हम डाइजेशन प्रोसेस को हम ट्रांसफर कर देंगे। ओके, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे बाय डाइजेशन प्रोसेस। ओके, अभी यहाँ पर निकालते कितना आता है, वो डेबिट साइड की टोटल हो जाएगी 70,000। ओके, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 70,000 और बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी 60,000, यूनिट्स आएंगे 60,000। ओके, यहाँ पर भी टोटल निकाल देना। ओके, 29,29,000 और माइनस करके यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी बैलेंसिंग अमाउंट। ओके, एक्चुअली यहाँ पर अभी रेट अभी चेंज हो जाएगा, वो रेट एक्चुअली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, रेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पर अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट्स ये करके हम रेट निकाल सकते हैं। तो रेट यहाँ पर आ रहा है 42.233। ओके, तो ये रेट अप्लाई हो जाएगा सेकंड प्रोसेस को। अभी ये मैं कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ, एक्चुअली सेकंड प्रोसेस प्रिपेयर करेंगे हम। अभी यहाँ पर डाइजेशन प्रोसेस हम प्रिपेयर करेंगे। डाइजेशन प्रोसेस। ओके, अभी डाइजेशन प्रोसेस प्रिपेयर करने के लिए अभी जो आउटपुट है ना वो ये जो प्रोसेस स्टॉक का आउटपुट है वो प्रोसेस स्टॉक इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक का जो आउटपुट हमने बैलेंसिंग अमाउंट निकाला वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओके, यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। ये मैं एक्चुअली पहले कॉपी पेस्ट करके लेता हूँ नीचे। ओके, तो पहले क्या रहता था एक्चुअली, ये जो आउटपुट है वो डायरेक्टली यहाँ पर ट्रांसफर हो जाता, सेकंड प्रोसेस को ट्रांसफर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करने का है, ये जो आउटपुट है वो हमें ट्रांसफर करने का यहाँ पर इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट को ट्रांसफर करने का है, और प्रोसेस स्टॉक अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पर ट्रांसफर करने का है। तो इतना ही डिफरेंस है एक्चुअली, ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ये अकाउंट है तो ये अकाउंट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, टू इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ओके, कितना बैलेंस है, ये बैलेंस है, हम ये ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। ओके, अभी बाकी का इन्फॉर्मेशन एज इट इज कॉपी पेस्ट करके लेते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगा एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट नॉर्मल यील्ड होता है एक्चुअली 60% बताया, मतलब आउटपुट नॉर्मल लॉस कितना रहेगा 40% रहेगा, वो इनपुट पे आएगा। तो यहाँ पर इनपुट यूनिट इतना है तो इनटू 40 डिवाइड बाय 100। ओके, तो ये आ गया इतना। उसका रेट यहाँ पर दिया हुआ है नीचे 15 रुपीज़ पर केजी है, तो 15 रुपीज़ पर केजी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके हमारा अमाउंट आ जाएगा। ओके, 3,60,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है आउटपुट, आउटपुट 36,000 है, तो आउटपुट यहाँ पर मेंशन करने के आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक अकाउंट 36,000। ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक 8,000 है, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 8,000। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 4,000, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 4,000। ओके,
नेक्स्ट ये प्रोसेस मटेरियल है 8,26,000, तो ये डेबिट साइड को आ जाएगा, प्रोसेस मटेरियल 8,26,000। ओके, नेक्स्ट लेबर दिए 1,500 इंटू 100। ओके, तो लेबर आएंगे 1,500 इंटू 100, 1,500 इंटू रेट पर के 100। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 1,500 इंटू 100। ओके, 1,50,000। नेक्स्ट मशीन ओवरहेड, नेक्स्ट मशीन ओवरहेड, मशीन ओवरहेड दिया है 50% ऑफ प्रोसेस मटेरियल। ओके, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा 50% ऑफ मटेरियल। ओके, 50% ऑफ प्रोसेस मटेरियल। तो यहाँ पर प्रोसेस मटेरियल कितना है हमारा, ये प्रोसेस मटेरियल है इंटू 50 डिवाइड बाय 100, 50%। ओके, मतलब 8,26,000 के 50% हमारा आ गया मशीन ओवरहेड। उसके बाद में अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दिए 1,63,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,63,000। ओके, 1,63,000। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू हमें दिया है 140 रुपीज़, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू रेट 140 रुपीज़, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आ जाएगा 8,000 इंटू 140। ओके, 11,20,000। ओके, स्क्रैप वैल्यू 15 दिया हुआ है, वो हमने यूटिलाइज कर दिया, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अभी एक्चुअली कंप्लीट हो गया है। अभी हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल देंगे। बैलेंसिंग अमाउंट देखते क्या आता है। डेबिट साइड का टोटल या यूनिट का आ रहा है 60,000, क्रेडिट साइड का आ रहा है 60,000 ही आ रहा है, मतलब टैली हो रहा है एक्चुअली, एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं आ रहा है 60,000, तो ये डिलीट कर देंगे। ओके, अभी रेट फाइंड आउट करेंगे। प्रोसेस रेट फाइंड आउट करने के लिए डेबिट साइड का टोटल, ओके, प्रोसेस रेट फाइंड आउट करने के लिए डेबिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, एक मिनट, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 40,88,000, 40,86,000। ओके, 40,86,000। ओके, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ रहा है 3,60,000, 3,60,000। ओके, डिवाइड बाय इनपुट यूनिट 60,000, इनपुट यूनिट 60,000। ओके, एंड स्क्रैप वैल्यू एंड नॉर्मल लॉस यूनिट 24,000। ओके, नॉर्मल लॉस यूनिट 24,000। तो इस हिसाब से हमारा एक्चुअल रेट आएगा 103.5। ओके, 103.5 हमारा रेट आ रहा है। ओके, तो रेट हम अप्लाई करेंगे, आउटपुट को रेट अप्लाई करेंगे 103.5। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करके आउटपुट का हमें टोटल अमाउंट मिल जाएगा 37,26,000। और ये सेम रेट हम अप्लाई करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को भी। ओके, 103.5। ओके, क्लोजिंग स्टॉक को भी हम सेम रेट अप्लाई करेंगे। एबनॉर्मल लॉस गेन रहता था तो उसको भी हम सेम रेट अप्लाई कर देते। ओके, करना पड़ता था एक्चुअली, लेकिन हमारे पास अभी एबनॉर्मल गेन लॉस नहीं है। ओके, अरे ऊपर भी हमने टोटल नहीं कर दिया, टोटल देखो कितना आ रहा है एक्चुअली। ओके, वही सेम टैली होगा एक्चुअली, तो यहाँ पर भी टैली होगा। ओके, 40,86,000। ओके, क्रेडिट साइड भी 40,86,000। ओके, अभी रेट हमने मेंशन कर दिया। ये जो आउटपुट है वो हमें कहाँ पर ट्रांसफ़र करने का है, स्टॉक अकाउंट को ट्रांसफ़र करने का। तो यहाँ पर हम स्टॉक अकाउंट को वो आउटपुट है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, स्टॉक अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, वो डाइजेशन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट है। अभी बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे, वो हम लास्ट प्रोसेस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। लास्ट प्रोसेस क्या है, एसिमुलेशन। ओके, तो लास्ट प्रोसेस अकाउंट को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, एसिमुलेशन प्रोसेस अकाउंट। ओके, यहाँ पर टोटल आएगा 44,000। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगा, बैलेंसिंग यूनिट्स आ जाएगा 40,000। ओके, ये भी सेम कॉपी पेस्ट करके लो, 48,46,000। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर आएगी
44,32,000। यहाँ पर रेट हम ऐसे निकाल सकते हैं, ओके 110.8। ओके, तो अब लास्ट प्रोसेस हम प्रिपेयर करेंगे। अभी ये बैलेंस हमारा ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस को। लास्ट प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन प्रोसेस अकाउंट। और उसका भी स्टॉक भी वही उसका ही प्रिपेयर होगा। ओके, ओके अभी नेक्स्ट प्रोसेस प्रिपेयर करते हैं। पहला जो लास्ट प्रोसेस स्टॉक का जो बैलेंसिंग अमाउंट था वो हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। ओके, ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर, ओपनिंग मतलब इनपुट करके ट्रांसफर कर देंगे। ओके, उसके बाद में प्रॉब्लम में देखेंगे क्या क्या है। 50% है यहाँ पर, नॉर्मल यील्ड 50% है, मतलब लॉस भी 50% ही है। ओके, तो 50% ऑन इनपुट, इनपुट कितना है 40,000, उसके 50% तो आ जाएगा 20,000। रेट दिया हुआ है प्रॉब्लम में कितना है 20 है, स्क्रैप वैल्यू का रेट दिया हुआ है लास्ट में 20, तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ओके, 4 लाख रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आउटपुट दिया हुआ है 21,000, तो आउटपुट यहाँ पर मेंशन होगा 21,000। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000 एंड क्लोजिंग दिया है 4,000, तो ओपनिंग यहाँ पर 5,000 एंड क्लोजिंग यहाँ पर मेंशन कर देंगे 4,000। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस मटेरियल दिया हुआ है 6,17,000, प्रोसेस मटेरियल 6,17,000। नेक्स्ट लेबर है 1,000 इंटू 150। ओके, लेबर है 1,000 इंटू 150। ओके, तो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा लेबर की कॉस्ट 1,000 इंटू 150, मतलब 1,50,000 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट मशीन ओवरहेड दिया हुआ है 22 लाख, इतना नहीं रहेगा एक्चुअली, 2,34,000, 2,34,000। ओके, मशीन ओवरहेड 2,34,000, 2,34,000। ओके, नेक्स्ट अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,34,000। ओके, एंड ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 300। ओके, रेट दिया हुआ है 300, इसकी वजह से ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा 15 लैक्स। ओके, अभी खत्म हो गया एक्चुअली, अभी बैलेंसिंग अमाउंट निकालने की है। बैलेंसिंग अमाउंट देखिए, डेबिट का टोटल आ रहा है 40,000, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 41,000। ओके, तो यहाँ पर 41,000 आ जाएगा, यहाँ पर भी 41,000 आ जाएगा, और बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी, बैलेंसिंग यूनिट्स आ जाएगा 1,000, उसको हम नाम देंगे टू एबनॉर्मल गेन। ओके, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अभी ये रेट निकालेंगे हम प्रोसेस का, देखते कितना आता है। डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। ओके, डेबिट साइड का ये टोटल। ओके, लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस आ रहा है 44 लाख, इनपुट यूनिट 40,000 एंड नॉर्मल लॉस यूनिट 20,000। ओके, तो रेट आ रहा है 258.35, तो रेट आउटपुट को आ जाएगा 258.35। ओके, सेम रेट यहाँ पर भी आ जाएगा 258.35, और सेम रेट यहाँ पर भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को 258.35। ओके, तो वो अप्लाई करके हम यहाँ पर रेट निकालेंगे सबका, एबनॉर्मल गेन का, सेम ये आउटपुट का, और लास्ट ये क्लोजिंग स्टॉक का, सबका रेट निकालेंगे तो इतना रेट आ रहा है। ओके, ओके कंप्लीट हो गया। अभी ये आउटपुट है वो ट्रांसफर होगा प्रोसेस स्टॉक अकाउंट को, यहाँ पर आउटपुट ट्रांसफर हो जाएगा प्रोसेस स्टॉक अकाउंट को। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल देंगे, ये 26,000 आ रहा है, यहाँ पर भी 26,000, बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 22,000, यूनिट्स आ रहा है 22,000, और अमाउंट भी निकाल लेंगे बैलेंसिंग अमाउंट।
69, 25, 350. ओके, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर निकाल देंगे। ओके, रेट यहाँ पर निकालने के लिए ये डिवाइडेड बाय ये, यहाँ से रेट निकालेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ है एक्चुअली प्रोसेस स्टॉक। बघा, डिफरन्स जास्त काही नाही आहे ॲक्च्युली। प्रोसेस स्टॉक अकाउंट जेव्हा प्रिपेअर करायला विचारतील तेव्हा आपल्याला नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचे, जे आउटपुट आहे ते आपल्याला प्रोसेस स्टॉक अकाउंटला ट्रान्सफर करायचं आहे। प्रोसेस स्टॉकचा ओपनिंग स्टॉक दिलेला असतो आणि क्लोजिंग स्टॉक पण दिलेला असतो। ओपनिंग स्टॉकचा रेट पण दिलेला असतो, क्वांटिटी पण दिलेली असते, ते मल्टिप्लाय करायचं आणि आपल्याला अमाऊंट फाइंड आउट करायचे। क्लोजिंग स्टॉकची क्वांटिटी दिलेली असते, रेट आपला जो प्रोसेसचा रेट येतो तो आपल्याला अप्लाय करायचा आहे। ओके, जो प्रोसेसचा जे आउटपुट असतं ते आपण प्रोसेस स्टॉकला आपण ट्रान्सफर करतो। ओके, आणि मग प्रोसेस स्टॉकची बॅलन्सिंग अमाऊंट आहे ती आपण नेक्स्ट प्रोसेसला आपण ट्रान्सफर करतो। ओके, अशा पद्धतीने आपण सिलेक्ट करतो। सेकंड प्रोसेसला सुद्धा तसंच सर्व आपण प्रिपेअर केलं, आउटपुट आपण मेन्शन केला आणि इथे ॲबनॉर्मल गेन किंवा लॉस येणार आहे तो आपण इथे फाइंड आउट सुद्धा केलं। इथे ॲबनॉर्मल लॉस आलेला होता। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रोसेसमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीने बॅलन्सिंग सर्व आपण ट्रान्सफर केल्यानंतर मग आपण आउटपुट मेन्शन केलं। ओके, आउटपुट आपल्या नेक्स्ट प्रोसेस म्हणजे त्याच प्रोसेसच्या स्टॉक अकाउंटला आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आउटपुट, पण तो ट्रान्सफर करण्याच्या आधी आपला रेट आपल्याला फाइंड आउट करायला लागतो। तर आपण फॉर्म्युला यूज करून आपण रेट आपण फाइंड आउट केला। रेट आपण 3 ठिकाणी आपण यूज करणार आहोत, या आउटपुटला, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉकला आणि ॲबनॉर्मल लॉस किंवा गेन असेल तर त्याला आपण युटिलाइज करणार आहोत। ओके, तर आपण फर्स्ट प्रोसेसमध्ये आपण केला बघा, इथे फर्स्ट प्रोसेसमध्ये ॲबनॉर्मल ह्या 3 ठिकाणी आपण यूज केला तो रेट। ओके, सेकंडमध्ये ॲबनॉर्मल गेन लॉस नव्हता त्यामुळे ते काय युटिलाइज झालेलं, म्हणजे आपण 2 ठिकाणी आपण मेन्शन केला, आउटपुटला आणि क्लोजिंग स्टॉकला। सेम सिच्युएशन, हा जो आउटपुट आहे तो पुन्हा स्टॉक अकाउंटला ट्रान्सफर झाला। स्टॉक अकाउंटची जी बॅलन्सिंग अमाऊंट आहे ती आपण ट्रान्सफर केली पुन्हा इथे नेक्स्ट प्रोसेसला। सेम सिच्युएशन पूर्ण सॉल्व केलं, नंतर बॅलन्सिंग अमाऊंट आपण बघितली, ॲबनॉर्मल लॉस येते का गेन येते। ओके, रेट आपण फाइंड आउट केला। ओके, रेट फाइंड आउट केल्यानंतर तो रेट आपण 3 ठिकाणी पुन्हा यूज केला, आउटपुटला, गेनला आणि हा आउटपुट आपण ट्रान्सफर नाही ना अजून केला, हा आउटपुट ट्रान्सफर करून घ्या। इथे केला वाटते ना आपण ट्रान्सफर 258.30, हां केला आपण, ट्रान्सफर केलेला आहे। ओके, आणि हे जे आहे ना हे फायनल आउटपुट आपल्या फिनिश स्टॉकला आपलं ट्रान्सफर होईल। फिनिश स्टॉक अकाउंटला आपलं ट्रान्सफर होईल फायनल आउटपुट। ओके, तर अशा पद्धतीने आपलं ॲक्च्युली कंप्लीट होणार आहे। इथे जास्त काही नाही आहे, फक्त एक स्टॉक अकाउंट ॲडिशनल अकाउंट आपल्याला फक्त प्रिपेअर करायचं आहे, त्याचा ओपनिंग आणि क्लोजिंग स्टॉक आपल्याला प्रोव्हाइड केलेला असतो। जी आपण प्रोसेस अकाउंट प्रिपेअर करतो त्याचा जो बॅलन्सिंग अमाऊंट आहे, जे आउटपुट आहे ते आपण स्टॉकला ट्रान्सफर करायचं आणि स्टॉकचा आउटपुट आहे तो नेक्स्ट प्रोसेसला ट्रान्सफर करायचा, म्हणजे एक ॲडिशनल एक मध्ये एक अकाउंट फक्त आलेलं आहे, बाकी काही नाही आहे, बाकी विशेष असं नवीन असं काही नाही आहे। ओके, ओके, काय क्वेरी आहे कोणाला?